of all, what we have discussed is nucleophilicity depends on right. तो देखो यहाँ पे nucleophilicity depends on, सबसे पहले आपका आता है electronegativity और the tendency to provide electrons. Highly electronegative do not provide electron pair, तो उसके वजह से nucleophilicity जो है वो decrease करता है. Down the group, as our size increases as per Fajan's rules, polarizability increases or the tendency to provide electrons increases. So along a period, nucleophilicity decreases. Along a group, nucleophilicity increases. All right. Now, इसके अलावा obviously there can be many other factors. तो हम continue करते हैं. Nucleophilicity और किस factor पे depend करता है? चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ. Nucleophilicity factors. All right. The first factor was electronegativity. When electronegativity increases, nucleophilicity, बताओ, correct, nucleophilicity decreases. Second factor, when size increases, nucleophilicity, correct, increases. Now the third factor that we are going to discuss is बहुत simple सा ये देखो कि अगर मैं compare कर रहा हूँ negative charge, okay, neutral and positively charged, okay, Nu is neutral, okay, तो ऑब्वियसली इसमें से किसका टेंडेंसी ग्रेटेस्ट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करने का? Which of these would be most electron rich? Obviously negative charge वाला most electron rich होगा. Okay, so nucleophilicity is also dependent on negative charge. That is अगर मैं compare करूँ between OH minus and H2O in terms of nucleophilicity, तो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा आएगा बताओ? करेक्ट, मेरा OH minus would be a better nucleophile, right? Similarly, अगर सपोज करूं मैं कंपेयर करूं, let's say S2 minus, HS minus and H2S, okay, बताओ इसमें से बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा? Obviously S2 minus आएगा, ठीक है, followed by HS minus, followed by H2S. So negative species are better nucleophiles than neutral species, and which in turn are better nucleophiles than positive species. Alright, positive species तो बहुत ही कम होंगे, नेगेटिव आपका नेगेटिव एंड न्यूट्रल जो है वो ज्यादा कॉमन है. कंप्लीट कर लो. नोट कर लिया? Okay, so these are the major factors on which it depends. इसका actually और fourth factor नहीं है, third factor है. Okay, तीन factors ये है आपका electronegativity, size and आपका charge, right? Now इसके अलावा there is one important point that we have to note here. Okay, कि आपको कई बार ऐसे दिया जा सकता है question, arrange nucleophile behavior, एक ही बात है, nucleophile behavior of F minus Cl minus Br minus I minus in polar and non-polar solvent. In polar and non-polar solvent. Okay, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ. सबसे पहले ये सारे आयंस हैं, ओके, तो ये किसमें हाइड्रेट या डिसॉल्व ज्यादा करेंगे बताओ, पोलर या नॉन पोलर में? These are all ions, so in which type of solvent would they prefer to dissolve, polar or non-polar? Obviously they will prefer to dissolve in polar solvents, right? ये चीज जो है आपके polar solvent में dissolve करना prefer करेंगे. Now अब देखो काफी simple है. So between F minus, Cl minus, Br minus and I minus, which one would be most hydrated? बताओ polar solvent में. Obviously मैं आपको यहाँ पे example दे रहा हूँ. Why polar? आयनिक कंपाउंड्स है, आयंस जो है वो पोलर में ज्यादा अच्छा डिसॉल्व करते हैं. ओके, सो ऑब्वियसली F माइनस वुड बी मोस्ट हाइड्रेटेड, और अगर F माइनस मोस्ट हाइड्रेटेड है तो उसका ही टेंडेंसी मिनिमम होगा टू बी एबल टू प्रोवाइड लोन पेयर. ऐसा ना? ओके, सो अगर मैं पोलर के बारे में लिखूं, राइट, इफ आई राइट अबाउट पोलर सॉल्वेंट, तो यहां पे मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा? फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी F minus would be minimum,
right, followed by Cl minus, followed by Br minus, followed by I minus. Is that clear? लेकिन अगर मैं यहाँ पे अच्छा इसका रीजन क्या है? ओके, इसका रीजन यहाँ पे ये आएगा कि F minus is highly hydrated. F minus is highly hydrated. Okay, hence unable to provide load there. Alright. लेकिन अब अगर मैं यहीं पर ही नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलूं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो अब इसमें से कोई सा भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, ओके, अब उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा जिसका की चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट है, ओके। अब आप बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट किसका है? चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय साइज। हाउ टू नो विच इज मोस्ट हाइड्रेटेड, तो आते हैं उसको, ओके। Now F minus Cl minus Br minus I minus में चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट किसका है बताओ? देखो ऑब्वियसली F माइनस का चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होगा क्योंकि चार्ज सब पे सेम है, जिसका साइज स्मॉलेस्ट होगा उसका डेंसिटी हाईएस्ट आएगा, राइट। सो नॉन पोलर सॉलिड में यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर क्या था? दिस इज इंपॉर्टेंट, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ओके। नाउ अगर आपको कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम हमेशा यही वाला ही ऑर्डर लेंगे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इन दैट केस आपको ये चीज ध्यान रखना, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर सिंस देयर इज नो हाइड्रेशन, we take into account charge density, okay, no problem. Now so somebody just asked कि हम हाइड्रेशन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको हाइड्रेशन का भी मेथड बताया था। कोई चीज कितना हाइड्रेट होता है उसके लिए दो ही फैक्टर्स थे, हर केस में आपके दो ही फैक्टर्स मेजरली आते हैं। क्या क्या आते हैं बताओ? एक तो चार्ज, दूसरा साइज। इफ चार्ज इंक्रीजेस हाइड्रेशन इंक्रीजेस, इफ साइज डिक्रीजेस हाइड्रेशन इंक्रीजेस, ओके। अकाउंट क्या? टेक इनटू अकाउंट चार्ज डेंसिटी, टेक इनटू अकाउंट, we take into account charge density. नॉन पोलर में I माइनस कैसे ज्यादा आ जाएगा? नॉन पोलर में I माइनस कम आता है बिकॉज यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। देखो एक और बार देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, ध्यान दो आप सभी। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं चार्ज डेंसिटी तो ये क्या होता है? ये वेरी सिंपली चार्ज बाय साइज होगा, ओके। नाउ फॉर चार्ज डेंसिटी टू इंक्रीज साइज मस्ट, फॉर चार्ज डेंसिटी टू इंक्रीज साइज मस्ट डिक्रीज। ये पार्ट पहले क्लियर हुआ? ऑलराइट। नाउ अब देखो, अगर मेरे पास एक पोलर सॉल्वेंट है सच एज वाटर, ओके, इफ आई हैव अ पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, सो इन दैट केस क्या होता था? आपका F माइनस जो है वो H2O मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा घिर रहा था, ओके, इट वाज बीइंग सराउंडेड बाय H2O मॉलिक्यूल्स, यस नो, ओके। सो अगर इसको H2O मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली इसको प्रोवाइड कर पाएगा? ऑब्वियसली ये चीज को इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ओके। सो इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एंड बिकॉज F माइनस वुड बी मोस्ट हाइड्रेटेड, तो उस वजह से उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो मिनिमम हो गया। इज दैट क्लियर? आयोडीन वुड बी लीस्ट हाइड्रेटेड, ओके, आयोडीन वुड बी लीस्ट हाइड्रेटेड, तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। वेराज यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर F माइनस का चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में अब और हाइड्रेशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ओके ना। जब और हाइड्रेशन का पॉइंट ही नहीं है तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि अच्छा किसका चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। इज दैट क्लियर? यस, न्यूक्लियोफिलिटी में मैंने आपको यही लिखवाया है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू साइज,
बट इट इज प्रोपोर्शनल टू साइज इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हम टिपिकली पोलर सॉल्वेंट ही लेते हैं। ओके यहाँ पे तभी तो मैंने आपको स्पेसिफिकली दिया ना, अगर आपके पास पोलर एंड नॉन पोलर दिया तो उस केस में क्या करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो वी विल अज्यूम पोलर सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग सुनते आधा हो। मैंने अभी तुमको क्या बोला, nucleophilicity is directly proportional to size. That is absolutely correct. Okay, but this is in general, अगर कुछ भी mention नहीं है, this is in case of polar solvents. Okay, तो अगर नॉन पोलर में एक्सेप्शन आएगा तो मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं? राइट, बताऊं फिर? राइट, तो अब आपको ये याद है कि नॉन पोलर में ये चीज नहीं आता, नॉन पोलर में दिस इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नॉन पोलर में इट इज चार्ज डेंसिटी दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी क्लियर? यस, उल्टा सी, उल्टा से फर्क नहीं पड़ता है, इट इज चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का ट्रेंड उल्टा आ रहा है, बट डोंट थिंक कि अच्छा यहाँ पे उल्टा वहां पे सीधा, थिंक कि यहाँ पे एक्चुअल में फैक्टर क्या है। All right, let's continue. So now हाइड्रेशन वाला पार्ट में क्या समझाऊंगा, ये तो आपको याद होगा। हाइड्रेशन वाले पार्ट में होता क्या है, आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई भी कैटायन होता है तो वो इससे अट्रैक्ट होता है, कोई भी एनायन होता है तो वो इससे अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ खास नहीं है। राइट नाउ, सो अब देखो, वील कंटिन्यू नाउ। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो मुझे डिस्क्राइब करना था वो मैंने कर दिया। राइट नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अनदर मैकेनिज्म जो कि आपको समझना है, व्हिच इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हमने पहले भी यही हेडिंग डाला था, बट वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर ओनली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ अब सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ओके और अगर मैं इसमें HCl ऐड कर रहा हूँ, okay, if I'm adding HCl here, then कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। okay, now this is called as addition, this is called as addition क्योंकि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में मैं एडिशनल एटम्स डालने वाला हूँ, which is why this is called as addition। अगर इंस्टेड जैसे कि हम फोटो हैलोजिनेशन करते थे, फोटो हैलोजिनेशन में क्या हो रहा था कि CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H2, ये मैं क्या दे रहा था, CH3Cl दे रहा था। ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने एक H को एक Cl से सब्स्टिट्यूट किया। ओके, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इन दिस मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू ऐड सम न्यू एटम्स। एंड आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि एडिशन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे ही होता है। ओके नाउ, अगर कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है तो क्या उसको और एडिशनल एटम्स चाहिए? If something is saturated, will it ever add any more atoms? Obviously, it will not add more atoms. So addition always takes place on unsaturated molecules, right? Now, अब देखो यहाँ पे मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है। Now there are two possibilities. Okay, the first possibility is कि H मेरा इस पोजीशन पे ऐड हो and Cl मेरा इस पोजीशन पे ऐड हो। Okay, and the other possibility is कि Cl मेरा इस पोजीशन पे ऐड हो and H मेरा इस पोजीशन पे ऐड हो। yes or no? Okay, there are two possibilities here क्योंकि ये पोर्शन तो सैचुरेटेड है, इट इज दिस पोर्शन विच इज नॉट सैचुरेटेड। ओके, सो अगर HCl में ऐड कर रहा हूं तो यही दो पॉसिबिलिटी कि एक केस में H यहाँ पे लगा, दूसरे केस में H यहाँ पे लगा। दीज आर ऑल माय पॉसिबिलिटीज। yes or no? ओके ना, अब मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं अब मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि अच्छा एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है। नाउ ध्यान दो, यहां पे अब आपका मैकेनिज्म क्या है। HCl जो है that basically dissociates into H plus and Cl minus। ओके ना, अब इस स्पीशीज पे जो है सबसे पहले H plus ऐड होता है। ओके नाउ, अब अगर मैं देखूं H plus एंड Cl minus, तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H plus या Cl minus?
करेक्ट, यहाँ पे H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, Cl माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, यस और नो, ओके। ना अब क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं H प्लस ऐड कर रहा हूँ बिफोर एडिंग Cl माइनस, बिकॉज आई एम एडिंग H प्लस, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या ये आपको समझ में आया? Okay, because in the mechanism it is actually H plus which gets added first, which is why we call this electrophilic addition. Okay, now अब देखो, अब अगर मैं H plus add कर रहा हूं, ध्यान दो आप सभी, तो या तो मैं H इस पोजीशन पे ऐड करूंगा, हाँ चलो ठीक है, नंबर कर दो। ओके, सो स्टेप नंबर 1, राइट। नाउ अब देखो, या तो H जो है मैं इस पोजीशन पे ऐड करूंगा, ओके, या तो H जो है मैं इस पोजीशन पे ऐड करूंगा, ओके। सो आइदर आई कैन ऐड H हियर और आई कैन ऐड H हियर, ओके। एंड मैं जहां पर भी H ऐड करूंगा उसके दूसरे पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो H प्लस है, लेट अस अज्यूम कि मैं ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ, ओके। लेट अस अज्यूम कि मैं ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज मैं ये वाला कंपाउंड बना रहा हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगा, ओके। सो 1 2 3, बताओ चार्ज किस पे आ जाएगा? करेक्ट, तो चार्ज मेरा 2 पे आ जाएगा, यस और नो, ओके। या फिर अगर मैं इसका ऑपोजिट करूं, 1 2 3, सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड, सेम यहाँ पे H प्लस, ओके। लेट्स से कि मैं ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर रहा हूँ, तो अब इन दिस केस मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ शिफ्ट करेगा, अब चार्ज किस पे आएगा बताओ? करेक्ट, अब चार्ज मेरा 3 पे आएगा। क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, नाउ ध्यान दो, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। ना अब आप मुझे ये बताओ, बिटवीन ए एंड बी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, which carbocation is more stable? ये तो आप फट से बता सकते हो, between A and B which carbocation is more stable? Obviously A is more stable. Reason? A is more stable. Reason? करेक्ट, ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा एच, या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या याद रखना है, ओके। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कार्बोकैटायन एक्चुअली फॉर्म्स, दैट कार्बोकैटायन actually forms actually forms which is more stable, which is more stable, okay। so just अभी आपने मुझे बताया between A and B कौन सा ज्यादा स्टेबल है? करेक्ट, A ज्यादा स्टेबल है, यानी कि A फॉर्म होगा, B फॉर्म ही नहीं होगा, ओके। दिस विल सिंपली नॉट फॉर्म, नोट कर लो यहां तक। नोट कर लिया, okay। Now the next thing that we have to understand is it can undergo, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि अच्छा अगर मेरा बी फॉर्म होता है तो वो वापस से ए में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एक्चुअली इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, ओके। एंड इट वाज फाउंड आउट कि आपका डायरेक्टली एक ही कार्बोकेटायन फॉर्म होता है जो कि आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होता है, द फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज ऑलवेज दैट व्हिच इज मोर स्टेबल, राइट। नाउ ध्यान दो, सो अब देखो फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यस आई नो बी में भी शिफ्ट होगा, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, ओके। एक्चुअल में वैसा कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होता है, जो ज्यादा स्टेबल है वही फॉर्म होता है। मैं आपको आगे कोई एक एग्जांपल दूंगा जहां पे आपको समझ में आएगा, बट फॉर द मैटर राइट नाउ अंडरस्टैंड कि जो स्टेबल होता है वही फॉर्म होता है, राइट। ध्यान दो, सब आपका ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, ओके। नाउ कार्बोकेटायन में अंडरगो रीअरेंजमेंट, ओके। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो और स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, तो हाँ वो उस केस में रीअरेंजमेंट शो कर सकता है, ओके। इट मे अंडरगो रीअरेंजमेंट, मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा उसमें आपको समझ में आएगा, मे अंडरगो रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, ओके। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? ओके, यहाँ पे इन पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो काफी सिंपल सा कंपाउंड है, तो यहाँ पे अब और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस हियर इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ एक इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत होती है एक न्यूक्लियोफाइल की, व्हाट न्यूक्लियोफाइल डू आई हैव? करेक्ट, आई हैव Cl माइनस हियर, सो अब मेरा Cl माइनस जो है वो अटैच होगा, एंड मेरा Cl माइनस अटैच होगा इस पोजीशन पे, ओके। ना अब आप बताओ, फर्स्ट कंपाउंड या चलो लेफ्ट कंपाउंड राइट कंपाउंड, कौन सा एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्म होगा?
करेक्ट, मेरा सेकंड कंपाउंड है जो कि मेरा एक्चुअल में फॉर्म होगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होगा। करेक्ट, कंप्लीट करो इसको। तो एच हम शो थोड़ी ना करते, एच अभी भी है बट हम एच को शो थोड़ा ना करते, एच तो अंडरस्टूड होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया टू टू एक्सप्लेन कि अच्छा एच कहाँ पे ऐड हुआ, बट और आपको एच शो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सपोज करो मैं आपको ये वाला कंपाउंड दूं, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, फॉलो द मैकेनिज्म। ऑलराइट, फॉलो द मैकेनिज्म। हो सकता है आपका प्रोडक्ट काफी अनएक्सपेक्टेड सा आ जाए, सो ऑलवेज फॉलो द मैकेनिज्म। इसका प्रोडक्ट ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करो, फॉलो द मैकेनिज्म। आई वांट एवरीबॉडी टू डू इट राइटली। कंप्लीट हुआ क्या? Okay, very good. So I can see some of you have got it correct. Now, again, like I said, follow the mechanism because mechanism ही आपको बता पाएगा कि actual में क्या product form होता है. Okay. Now यहाँ पर देखो आपका क्या आता है. In this case, obviously सबसे पहले मैं क्या ऐड करूंगा? सबसे पहले मैं H plus ऐड करूंगा. Okay. Now I can add H here, I can add H here, but उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. हमें हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको सिर्फ मैकेनिज्म में समझा दिया था, ये बताने के लिए कि अच्छा हाइड्रोजन जहां पे ऐड होता है और पॉजिटिव जो होता है वो अलग अलग होते हैं. ये तो जस्ट मैंने बस आपको एक बार बता दिया था ना. अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. ओके, या तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा या तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा. ऐसा नो. ओके, सो आउट ऑफ फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी विच विल एक्चुअली हैपन? करेक्ट, फर्स्ट वाला ही एक्चुअल में होगा, ये वाला तो एक्चुअल में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा अल्फा एच इज ओनली 2, बट यहाँ पे मेरा अल्फा एच इज 4 मोर स्टेबल, तो ये वाला एक्चुअल में फॉर्म होगा. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. नाउ क्या ये कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है? कैन दिस कार्बोकैटायन रीअरेंज? Yes, of course, this carbocation can rearrange. In this case, this carbocation will move to this position by a hydride shift. Yes or no? Okay. With the help of a hydride shift, this carbocation will move to this position. Now, again, like I said, कि हो सकता है कि शिफ्ट करे, हो सकता है कि शिफ्ट नहीं करे. मतलब जैसे यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया. Only if more stable is formed, in that case, it will shift. If more stable is not found, in that case it will not shift. Same जो कि हमने कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था ना. अब और इसके आगे तो और कहीं पे शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज नाउ आई विल ऐड माय न्यूक्लियोफाइल. तो ये चीज यहाँ पे ऐड होगा. सो माय प्रोडक्ट हियर विल बी फाइनली दिस. ओके, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट इन दिस. देखो, चेक करो, इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ इसी के लिए देखो एक रूल. अब इसी के लिए देखो, यहाँ तक कंप्लीट कर ले सभी ने. ऑलराइट, नाउ इसी के लिए देखो क्या होता है. व्हाई वाज दिस मैकेनिज्म डिस्कवर्ड? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ओके लेट्स से अगर मैं इस चीज पे HCl ऐड करूं, ओके अगर मैं HCl इस चीज पे HCl ऐड करूं, तो चाहे मैं सेकंड पोजीशन पे ऐड करूं चाहे मैं थर्ड पोजीशन पे ऐड करूं, मुझे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है. ये सर, ओके, दिस और दिस बोथ आर सेम.
ये ना, तो मुझे एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये सेकंड में ऐड हुआ या थर्ड में ऐड हुआ? तो इसके वजह से क्या हुआ, वी यूज दिस ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये वाला जो है ये तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है ना। व्हेन वी यूज दिस ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, एक्चुअल में मेरा सीएल जो है वो इस पोजीशन पे ऐड हुआ है या इस पोजीशन पे ऐड हुआ है। ओके, सो टू एक्चुअली डिटरमाइन द पोजीशन देयर वाज अ रूल्ड और दिस इज डिफरेंट। ओके, नाउ टू एक्चुअली डिटरमाइन कि अच्छा मेरा H और Cl कहां पे ऐड होगा, वी हैव अ रूल कॉल्ड एज मार्कोवनिकॉव रूल। ना मार्कोवनिकॉव रूल क्या बोलता है, या मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या बोलता है, ध्यान दो। मार्कोवनिकॉव रूल या मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या बोलता है? इट टेल्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, ये आप नोट करो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम goes to that carbon atom goes to that carbon atom which has less number of H atoms। पहले आप इस चीज को नोट कर लो। मार्कोवनिकॉव एडिशन अगर आपको कभी भी पूछा जाए मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या होता है, तो इट इज बेसिकली दिस स्टेटमेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम goes to that carbon atom which has less number of H atoms। या फिर आप ब्रैकेट में एक और चीज भी मेंशन कर सकते हो, हाइड्रोजन goes to that carbon atom which has more hydrogen। ओके, एंड इसी को कई बार याद रखने के लिए काफी जगह आप ऐसे पढ़ोगे, रिच गेट्स रिचर। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, पहले आप नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? बता रहा हूँ, अडेंडम DUM, अडेंडम DUM, अडेंडम। अडेंडम यानी कि आप जो चीज ऐड कर रहे हो। लिख लिया? डेफिनेशन लिख लिया सभी ने? All right, now what does this definition mean? Let's look at this example. Okay, let's look at this example. This is carbon 1, carbon 2, carbon 3. Okay, now ध्यान दो, ऑब्वियसली जो एडिशन होगा वो या तो कार्बन 2 पे होगा या तो कार्बन 3 पे होगा। ओके, कार्बन 1 इज सैचुरेटेड, तो उस पर आपका कोई भी एडिशन नहीं होता है। सो वी ओनली हैव टू लुक एट कार्बन 2 एंड कार्बन 3। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे बताओ, कार्बन 2 के पास कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 2 के पास कितने हाइड्रोजन है? इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन। ओके, कार्बन 3 के पास कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 3 के पास कितने हाइड्रोजन है? सोच के बोलो। करेक्ट, इट हैज 2 हाइड्रोजन। ओके, नाउ अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ध्यान दो। द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, यानी कि जो चीज मैं ऐड कर रहा हूं। सो इस मॉलिक्यूल में मैं क्या चीज ऐड कर रहा हूं? मैं ये चीज ऐड कर रहा हूं। ओके, नाउ द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं HCl को डिवाइड करूं तो इसमें से कौन सा पार्ट पॉजिटिव आएगा, कौन सा पार्ट नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली इसका नेगेटिव पार्ट क्या आएगा? Cl माइनस आएगा। यस और नो? ओके, सो मेरे को ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? The negative part of addendum goes to that carbon atom which has less number of H atoms। तो between 2 and 3 लेस नंबर ऑफ H atom किसके पास है? ऑब्वियसली 2 वाले के पास लेस नंबर ऑफ H atoms है, तो यानी कि मेरा क्लोरीन जो है वो 2 वाले पे ऐड होना चाहिए एंड नॉट ऑन 3। यानी कि मेरा ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट जो है वो ये होना चाहिए। ओके, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके,
इज दैट क्लियर? एंड देखो हमारा फर्स्ट केस में प्रोडक्ट भी जो फॉर्म होता वो भी क्या फॉर्म होता, प्रोडक्ट भी मेरा यही प्रोडक्ट फॉर्म होता, ओके, वेयर द नेगेटिव पार्ट गॉट एडेड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन एटम, ओके। नाउ सिमिलरली अगर सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल, ओके, एंड अगर अब मैं यहाँ पे HCl ऐड करता हूँ, लेट्स कॉल दिस कार्बन एटम A, ओके, एंड लेट्स कॉल दिस कार्बन एटम B। नाउ अब आप बताओ यूजिंग माय डेफिनेशन, ओके, अब आप बताओ यूजिंग माय डेफिनेशन, वेयर शुड माय क्लोरीन बी एडेड एट A और B? ओके, ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन, राइट, बाय डेफिनेशन मेरा क्लोरीन जो है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मेरा क्लोरीन जो है वो A पे ऐड होना चाहिए, यस और नो? ओके, अच्छा, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ओके, लेट्स कॉल दिस वन A, लेट्स कॉल दिस वन B, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे HCl डालूं तो अब कहाँ पे ऐड होना चाहिए? राइट, सो हियर वी ऑब्वियसली कैन नॉट डिटरमाइन, अब हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे दोनों ही केस में दोनों पे सेम हाइड्रोजन है, ओके। या फिर देखो एक एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया, ओके, इफ यू गो बैक एंड लुक एट दिस एग्जांपल, ओके, लेट्स कॉल दिस A, लेट्स कॉल दिस B, बताओ क्लोरीन क्या इन दोनों में से किसी पोजीशन पे ऐड हुआ था? बताओ, क्लोरीन तो इन दोनों में से ही किसी भी पोजीशन पे ऐड नहीं हुआ था, राइट। सो मार्कोवनिकॉव एडिशन जो है दैट इज ओनली वैलिड, ध्यान दो आप सभी, मार्कोवनिकॉव एडिशन जो है इन, जब मार्कोवनिकॉव का रूल आया था, इन दैट केस और एट दैट टाइम द शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन वाज नॉट डिस्कवर्ड, ओके। सो मार्कोवनिकॉव एडिशन इज ओनली वैलिड, आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हो मार्कोवनिकॉव, मैं इसको शॉर्ट में MKV लिखता हूं, मार्कोवनिकॉव, ओके। मार्कोवनिकॉव एडिशन इज ओनली वैलिड, is only valid when carbocation doesn't shift, when carbocation doesn't shift, okay, it gives incorrect results, it gives incorrect, it gives incorrect results in majority of cases, it gives incorrect results in a large number of cases, hence always follow, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओके। हमेशा आप मैकेनिज्म ही फॉलो करोगे, मैकेनिज्म फॉलो करने पे ही आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, नोट कर लो फटाफट पहले आप यहां तक। सो मार्कोवनिक एडिशन सिर्फ डेफिनेशन के लिए है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, एंड जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज नहीं होता है वहां पे काम चल जाएगा, लेकिन जहां पर भी रीअरेंज होता है वहां पे आपका काम नहीं चलेगा। सो ऑलवेज 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 फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले आप H+ ऐड करो, चेक करो कि आपका कार्बोकैटायन कहां पे फाइनली पहुंचेगा, एंड देन वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड करो, कंप्लीट अप टू हियर। अब जब आप ये कंप्लीट कर लो देन आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, ओके। टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस हियर, नाउ यू फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताओ सबसे पहले आपका पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, A पे आएगा या B पे आएगा? दिस इज द ओनली पार्ट विच इज ट्रिकी हियर। वापस सोचो, वापस सोचो, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? चलो देखो हम दोनों पे पॉजिटिव चार्ज बना ही लेते हैं, ऑलराइट, लेट्स मेक पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ। टॉप मिथाइल पे कहां से आ जाएगा? डबल बॉन्ड पे ही कहीं ना कहीं पे आएगा ना, देखो। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ओके, या तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ओके। नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, आई विल गो बैक टू दिस स्टेटमेंट हियर, ओके। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ वही कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, ओके।
आप में से काफी लोगों ने ये बोला कि सर अगर ये वाला फॉर्म भी होगा तो भी ये चीज जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। बट इस तरह से नहीं होता है। ऑलवेज योर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म, उसके बाद का स्टेबिलिटी बाद में देखा जाएगा, ओके। पहले हम उसी कार्बोकेटायन को देखते हैं जो कि एक्चुअल में फॉर्म होगा, बाद का स्टेबिलिटी बाद में बात आता है, राइट। सो नाउ इफ आई लुक हियर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। सो अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? करेक्ट, क्लियरली बी वाला ज्यादा स्टेबल है। हियर माय नंबर ऑफ अल्फा एच इज ओनली 3, हियर माय नंबर ऑफ अल्फा एच इज ओनली 4, ओके। यानी कि ये वाला फॉर्म ही नहीं हो सकता, ओके। बाद में रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्म ही नहीं होगा। क्या अब आपको ये पार्ट समझ में आया जो मैंने आपको यहाँ पे बोला? इज दैट क्लियर? ओके। सो रीअरेंजमेंट जो है वो हमेशा फॉर्म होने के बाद ही देखते हैं। सो अगर फॉर्म ही नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं। नाउ ऑब्वियसली विल दिस कार्बोकेटाइन रीअरेंज? क्या ये कार्बोकेटाइन कहीं पर भी और रीअरेंज होगा? अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तब तो अल्फा एच 3 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तब तो अल्फा एच 4 ही रहेगा। सो दिस विल नो लॉन्गर अंडरगो रीअरेंजमेंट, क्योंकि और ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है। सो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली सीएल माइनस ऐड करो। सो इन दिस केस हियर माय प्रोडक्ट वुड बी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, यहाँ पे आप नोट कर लो, लेस स्टेबल, hence will not form, hence will not form at all। नहीं, यहां पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे, will not। यहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे, ऑब्वियसली कहीं पे हो सकता है आपको रेजोनेंस चेक करना पड़ जाए, ओके। कहीं पे हो सकता है आपको माइनस आई प्लस आई चेक करना पड़ जाए, डिपेंड्स। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मेरे तो अब तक कॉम्प्लिकेटेड दिए नहीं। will not form at all। we always have to check all the factors: resonance, hyperconjugation, inductive। rich get richer क्या है? very simple, हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर हाइड्रोजन। अब जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा एच है, आप उसको और भी एच दे रहे हो, तो दैट इज योर रिच गेट्स रिचर। क्लियर? यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, देन लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। यहां तक सभी ने पूरा लिख लिया? सभी ने पूरा लिख लिया? ऑलराइट, लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स देन। ओके, इन सभी का प्रोडक्ट अब आप लिखते जाओ, जो भी नंबर है ये, आई गेस क्वेश्चन नंबर। चलो इसको वन से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप सबके प्रोडक्ट जो है वो लिखते जाओ। यू डोंट हैव टू राइट द मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म या तो रफ में करो या तो आप मेंटली करो, एंटायरली अप टू यू। अगर आपको चाहिए तो आप रफ में कर लो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मेंटली कर लो, बट आई वांट द आंसर्स। नाउ ट्राई करो आप ये सारे। आई डोंट नीड द मैकेनिज्म, इफ यू वांट यू कैन डू इट ऑन, आप उसको रफ में कर सकते हो। ट्राई करो फटाफट।
10 questions, 5 minutes, should be more than enough. हो गया क्या? हो गया? बिफोर वी स्टार्ट, ओके, 10 क्वेश्चंस है. हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट कि अच्छा 5 से ज्यादा सही तो किए ही होंगे बिफोर वी स्टार्ट? जस्ट अ नॉर्मल बेट. 5 से ज्यादा करेक्ट कितने लोगों ने किए होंगे? चलो ठीक है, आई सी सम कॉन्फिडेंट पीपल. चलो वेरी गुड. हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट कि 7 से ज्यादा करेक्ट किए होंगे? I see some more confident people. How many of you think 9 correct? 8 or 9 correct? 8 9 करेक्ट वाले कोई नहीं है? Nobody? 8 करेक्ट वाला एक है. Alright. Anybody? Anybody else? Anybody thinking all 10 correct? Anybody overconfident here? Right. So obviously this is the first time. I don't expect कि आप ऐसे यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट करोगे. I expect कि आप में से लोग at least 7 करेक्ट हो जाने चाहिए. 5 से 7 करेक्ट वाले I guess most of you will be here. But let's see, क्या पता आप में से कोई निकल जाए सारे करेक्ट वाले. Now देखो, the first thing that we have to understand here is in all the cases we are going to follow electrophilic addition. That is पहले हम H plus ऐड करेंगे, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करेंगे, एंड जो भी मेरा कार्बोकेटाइन का फाइनल पोजीशन आएगा, राइट, जो भी कार्बोकेटाइन का फाइनल पोजीशन आएगा वहां पर जाके हम अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे. तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल. फर्स्ट वाले में कहां पर आ जाएगा? यहीं पर ही डायरेक्टली आ जाएगा, राइट. सेकंड वाला सिमेट्रिक है, डजंट मैटर, कहीं पर भी आप ऐड करो. ओके, सेकंड वाला सिमेट्रिकल, आप यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, डजंट मैटर, सेम रिजल्ट. थर्ड वाले में, नाउ थर्ड वाले में देखो, आई कैन, मैं यहाँ पे चलो दोनों ही जगह बना दे रहा हूँ. ओके, थर्ड वाले में मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ सकता है या फिर मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ सकता है. लेट्स कॉल दिस केस 1, लेट्स कॉल दिस केस 2. ओके, नाउ फर्स्ट वाले, अगर केस 1 वाला कार्बोकेटाइन को मैं देखूं तो उसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन अवेलेबल है? फर्स्ट वाले केस में अगर मैं देखूं तो इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 हाइपर कॉन्जुगेशन अवेलेबल, राइट. एंड अगर मैं सेकंड वाले को देखूं तो उसके पास कितने अवेलेबल है? करेक्ट, सेकंड वाले के पास सिर्फ 6 अवेलेबल है. ये ऐसा नो. ओके, तो यानी कि कौन सा वाला फॉर्म होगा? मेरा फर्स्ट वाला ही फॉर्म होगा. ओके, मेरा फर्स्ट वाला ही फॉर्म होगा. एंड यहाँ पे मुझे रीअरेंजमेंट का भी कुछ खास चांस तो दिख नहीं रहा है, तो इट विल रिमेन एज इट इज. सो यहाँ पर देखो मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा. देखो ऐसा फॉर्म होगा, ऐसा नो. ओके, नाउ द फोर्थ वन अगेन इज सिमेट्रिक. आप कहीं पर भी ऐड करो, डजंट मैटर. लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सिमेट्रिक, कहीं पर भी ऐड करो, डजंट मैटर, राइट. नाउ फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में देखो कहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है आप लोगों ने. फिफ्थ वाले में आपका कुछ इस तरह से आएगा. कितने लोगों ने ये लिखा है बताओ, फिफ्थ वाला? चलो वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया. ऑलराइट, so here obviously the carbocation that would be forming is this one, and then this carbocation can rearrange to go here. okay, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन जो है वो फाइनली सेटल हो जाएगा. ओके, अब इसको बस न्यूक्लियोफाइल का वेट है, तो न्यूक्लियोफाइल कम्स एंड अटैचेस हियर. नाउ अब ये सारे जो है वो स्लाइटली ट्रिकी है. देखो ध्यान दो, यहाँ पे
अच्छा चलो, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, टेल मी व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स। सिक्स वाले में आप लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट लिखा है, वॉट एवर इज दी आईयूपीसी नेम, गलत तो सही हो, डजेंट मैटर। आप शॉर्ट में बता दो कि आपका आईयूपीसी नेम क्या है प्रोडक्ट का। सिक्स वाला, बिफोर आई टेल यू, टेल मी व्हाट इज योर प्रोडक्ट। करेक्ट, चलो ठीक है, द फर्स्ट वन गॉट इट राइट। सो यहाँ पर देखो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा ये कंपाउंड। हाँ, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा ये कंपाउंड। देखो कैसे, देखो कैसे। सो द फर्स्ट थिंग इज, मेरा कार्बोकेटाइन जो है वो किस पोजीशन पे आएगा, मेरा कार्बोकेटाइन जो है वो इस पोजीशन पे आएगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप में रिंग एक्सपेंशन होगा, yes or no? Okay, in the next step in the next step it will be ring expansion, right? तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बना दे रहा हूँ, ये 5 मेंबर से 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, देन दिस पॉजिटिव चार्ज विल अगेन शिफ्ट टू दिस पोजीशन, एंड देन यहाँ पे आपका Cl- जो है वो अटैच होगा। ओके, अब आप आई थिंक मैकेनिज्म खुद से लिख सकते हो, yes or no? ओके, सेवेंथ वाले में चलो देखो, सेवेंथ, यस, रिंग एक्सपेंशन इज बेटर देन शिफ्टिंग। सेवेंथ वाले में देखो आप लोगों ने ये प्रोडक्ट लिखा क्या, सेवेंथ वाला, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट। सेवेंथ में देखो आपका रीअरेंज नहीं होगा, क्यों? सबसे पहली बात तो कार्बोकेटाइन इस पोजीशन में फॉर्म होगा, एंड हमने डिस्कस किया था कि दिस कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये था ना, राइट? हमने डिस्कस दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आपका कार्बोकेटाइन जो है वो इसी पोजीशन पे ही रहेगा, एंड क्लोरीन गेट्स एडेड एट दिस पोजीशन। नाउ इस वाले में आप लोगों ने क्या लिखा है बताओ। इस वाले में देखो आपका प्रोडक्ट यही आना चाहिए। ओके, इसमें क्या हुआ बताओ, अब तो आप देख के बता ही सकते हो इसमें क्या हुआ। ऑब्वियसली रिंग कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे रिंग पर ही चार्ज रहेगा, और अगर रिंग पे चार्ज रहेगा तो रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ 6 मेंबर्ड रिंग, एंड देन आप ये वाला कंपाउंड का मैकेनिज्म लिख सकते हैं। ओके, हियर देखो ये कंपाउंड फॉर्म होगा, अगेन रिंग कॉन्ट्रैक्शन। नाउ यहाँ पर देखो वन इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है। अच्छा चलो, पहले 9 तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, 9 तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, राइट? नाउ 10 वाले में देखो क्या होगा, 10 वाले में देखो क्या होगा। करेक्ट, सो 10 वाले में देखो सबसे पहले आई कैन ऐड दिस H प्लस ऑन एनी डबल बॉन्ड, आई कैन ऐड इट ऑन लेफ्ट, आई कैन ऐड इट ऑन राइट। कहाँ पे ऐड करना है बताओ, हम किस पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, किस पे करना है? सिमेट्रिकली है, किसी भी कर सकते हैं, लेफ्ट वाले पे। चलो ठीक है, मैंने लेफ्ट वाले पे ऐड किया। ओके, नाउ कार्बोकेटाइन कौन से पोजीशन में आएगा, 1 पे आएगा या 2 पे आएगा? 1 पे आएगा या 2 पे आएगा बताओ? ऑब्वियसली 2 पे आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है ना। अब देखो मुझे क्या समझना है, देयर विल बी टू प्रोडक्ट्स पॉसिबल हियर। एक तो मेरा ये कार्बोकेटाइन हुआ, और दूसरा मेरा ये चीज रीअरेंज होके यहाँ पर आएगा। ओके, सो हियर आई विल एक्चुअली हैव टू प्रोडक्ट्स। मेरा पहला प्रोडक्ट क्या आएगा, पहला प्रोडक्ट आएगा ये, एंड मेरा दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा। ओके, देखो चेक करो, समझ में आएगा? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज 1-2 एडिशन। बता रहा हूँ एक सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज 1-2 एडिशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज 1-4 एडिशन। बता रहा हूं मैं इसका मतलब क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एज 1-2 एडिशन, क्योंकि यहां पर देखो क्या हुआ कि मैंने यहां पर H ऐड किया एंड यहाँ पे Cl ऐड किया, ये दोनों 1-2 पोजीशन हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो यहाँ पे मैंने H ऐड किया एंड यहाँ पे मैंने Cl ऐड किया, तो विच इज दिस इज कॉल्ड एज 1-4 एडिशन। नोट कर लो पहले आप पूरा। यहाँ पे वन इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड के लिए आई रिक्वायर 1 HCl, बट मेरे पास तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। ओके, मेरे पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो मुझे तो आइडियली 2 HCl चाहिए होता, बट आई हैव नॉट गिवन 2 HCl, आई हैव ओनली गिवन 1 HCl। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे HCl जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लास्ट वाला फिर से, ऑलराइट देखो, लास्ट वाले में देखो क्या हुआ कि मेरा ये एल्कीन है,
हम लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी पोजीशन पे H प्लस ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ्ट में ऐड किया तो मेरा कार्बोकेटाइन तो यहीं पर ही आएगा, यस और नो? ओके, नाउ दिस कैन क्लियरली शो रेजोनेंस पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये चीज रेजोनेंस शो कर सकता है। तो रेजोनेंस एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ और दूसरा ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं क्लोरीन ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा, ओके। और अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं क्लोरीन ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा। इज दैट क्लियर? हेंस आई विल गेट बोथ ऑफ दीस। इज दैट क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन फिर से, अच्छा रुको उस पे आते हैं। बाकी सारे क्लियर हो गए? सेवेंथ वाला फिर से बता रहा हूँ, बट बाकी सारे क्लियर हो गए? डन, ऑलराइट। सेवेंथ वाला देखो भाई, सेवेंथ वाले में क्या चाहिए? ओके, यहाँ पर देखो आपका कार्बोकेटाइन के दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली आपका यही वाला ही फॉर्म होगा, हमने डिस्कस किया था कि आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, ऑब्वियसली वो यहीं पर ही रहेगा। क्लियर हुआ? नाउ सो 8 वाला, ओए 8 वाला तो 7 मेंबर्ड है। क्या कर रहे हो तुम लोग? यू नीड टू रिवाइज। बिना रिवाइज करे अगर आप बैठोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, राइट? 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो आपका 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगा। देखो ध्यान दो, ये चीज जो है आपका 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होता है, ओके। देन ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे शिफ्ट होगा। क्लियर? यू नीड टू रिवाइज। डन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो कितना करेक्ट किया आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट हाउ मेनी करेक्ट? या हाउ मेनी करेक्ट डिड यू गाइस गॉट? 9 करेक्ट, वेरी गुड। आई गेस आपने 10th वाला या तो पार्शियली गलत किया होगा या तो इसमें से कोई सा किया होगा। 6 करेक्ट, 7 करेक्ट, हाँ वही है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 5 से 7 या 5 से 8 के बीच में करेक्ट होगा। 10th का एक ही क्या, दैट वाज एक्सपेक्टेड। 7 करेक्ट, चलो ठीक है, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, सो आई न्यू कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक बार के लिए तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, बट 6th वाला करते ही आपको आगे ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाते हैं। ट्राइंगल वाला फिर से, 7 वाला, 7 वाला मैं आपको क्या बताऊंगा? 7 वाला में आप नोट्स रिवाइज नहीं करो। 7 वाले में मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर आपके पास, हमने ये चीज डिस्कस भी किया था कि अगर आपके पास ये कार्बोकैटायन है और अगर आपके पास ये कार्बोकैटायन है, in that case number of hyper conjugation is only one, but in this case the number of hyper conjugation is 1 2 3 4 5 6 7, sorry 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर hyper conjugation 7 है, यहाँ पर hyper conjugation 1 है। इवन देन ये चीज आपका रीअरेंज नहीं होता था, क्यों? क्योंकि दिस इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाया था जो कि काफी एक्सेप्शनल सा स्ट्रक्चर था। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से आ रहा था? इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ओके। एंड देन ओके, सो दिस वाज एन एक्सेप्शन, ये आपको याद रखना। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन। सो ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। So this was all about Markov-Nikov addition और your electrophilic addition. Markov-Nikov addition सिर्फ definition के लिए होता है या CBC के लिए होता है। Markov-Nikov addition से actual में questions solve नहीं होंगे, okay? या अगर solve हो भी जाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। Markov-Nikov addition can only be used when you have when carbocation will not rearrange, okay? But ऐसा हर केस में होगा नहीं होगा, we cannot predict. So it is always best to go by electrophilic addition. वो आपको हमेशा correct answer ही देगा, okay? Now, the next type of reaction is your anti-Markovnikov addition. This is your anti-Markovnikov addition, okay, or also called as peroxide effect, or also called as Kharash. I don't know if this pronounced, but also called as Kharash effect. Okay, anti-Markovnikov addition क्या बोलता है? Very simply, the negative part of addendum, पहले आप पूरा लिख लो, the negative part of addendum
goes to that carbon atom which has, now before I continue here, जब हमने मार्कोवनिकोव एडिशन किया था, जहां पे हमने मार्कोवनिकोव एडिशन का डेफिनेशन लिखा था, वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम जो है goes to that carbon atom which has more number of hydrogen or less number of hydrogen, correct, where it had less number of hydrogen atom. तो अगर हम एंटी मार्कोवनिकोव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके मोर आ जाएगा which has more number of H atoms. ओके फिर आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हो. H gets added, H gets added to that carbon atom which has less H atoms. ओके यहाँ पे आपका क्या होगा, poor gets richer. नोट कर लो. लिख लिया. लिख लिया. नाउ यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, मैं इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके पास में लिख देता हूँ. एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन is only followed by HBr. Okay, HCl, HI, HF do not follow anti-Markovnikov addition. Okay, सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोवनिकोव शो कर सकता है. HCl, HI, HF जो है वो आपका एंटी मार्कोवनिकोव किसी भी कंडीशन में शो नहीं करते हैं. लिख लिया. ओके ना देखो आपका बेसिकली एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन दिखता कैसा है. अगर सपोज करो मैं आपको एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दूं, डजंट मैटर, रीजन डजंट मैटर, इस पे हम आगे आएंगे, बट अभी के लिए इस पे ध्यान दो. सो अगर मैं यहाँ पे HBr, ओके ना अब देखो यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि आपको मार्कोवनिकोव एडिशन करना है या एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करना है. इट्स वेरी 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 सिंपल. ओके आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा एक ROOR. ओके ना ROOR आप ऐसे समझो, अगर मैं आपको H2O2 दूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ. दिस इज अ peroxide. ओके दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन peroxide. सो जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड दे, दिस कंपाउंड मींस इट इज अ peroxide. ओके तो अगर आपको कभी भी एक peroxide दिया जाए, चाहे आपको ROOR दिया जाए, चाहे आपको H2O2 दिया जाए, चाहे आपको Na2O2 दिया जाए, whatever type of peroxide, आपको कोई भी टाइप का peroxide दिया जाए तो उसका मतलब आपको यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन जो है वो फॉलो करना है. ओके नाउ दिस इज वेरी सिंपल. Now, in case of HBr, what is the negative part of the addendum here? HBr में negative part कौन सा आएगा? Obviously, Br minus आएगा. Okay. Now let's go. Now let's look at the definition. The negative part of addendum goes to that carbon atom which has more number of H atoms. So let's label 1, 2, 3. 1 तो saturated है, कोई point नहीं है. 2 के पास हाइड्रोजन कितने हैं बताओ. 2 के पास एक हाइड्रोजन है. 3 के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 के पास 2 हाइड्रोजन है. तो अब ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे ऐड होना चाहिए, 2 या 3 पे? Obviously it should get added at 3. तो यानी कि यहाँ पे मेरा ब्रोमीन जो है वो इस पोजीशन पे ऐड होगा एंड हाइड्रोजन जो है वो इस पोजीशन पे. ओके नोट कर लो. नोट कर लिया. अगर सिमेट्रिकल है तब क्या फर्क पड़ता है? इफ इट इज सिमेट्रिकल तब तो क्या फर्क पड़ता है, तब तो दोनों जगह बराबर है, कैसे भी ऐड करो.
कहीं पर भी ऐड करो, बात तो बराबर ही है, यहाँ पे करूँ यहाँ पे करूँ बराबर ही है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन follows free radical mechanism, follows free radical mechanism and not electrophilic addition. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म ही डिफरेंट है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी डिफरेंट आता है, which is why mechanism is important, because mechanism helps us in predicting our product. Okay, now अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बोला है कि एंटी मार्कोव एडिशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ना। अब आप याद करो, जहां पे हमने डिस्कस किया था होमोलाइटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक फिशन, तो फ्री रेडिकल जो है वो कहां पे फॉर्म होता है, होमोलाइटिक में या हेटेरोलाइटिक में? बस इससे पता चलता है तुम नमूने कितना पढ़ के आते हो। होमोलाइटिक का मतलब इक्वल ब्रेकिंग होता है, हेटेरोलाइटिक का मतलब अनइक्वल ब्रेकिंग होता है। अगर आप फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको होमोलाइटिक फिशन चाहिए। ओके, ऑब्वियसली आई रिक्वायर होमोलाइटिक फिशन हियर ना। अब मैंने आपको इसके अलावा कंडीशन भी बताया था कि होमोलाइटिक फिशन करने के लिए हम क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं। द फर्स्ट कंडीशन वाज सनलाइट, ओके, द सेकंड कंडीशन वाज correct, it was h mu. The third condition was correct, it was high temperature, and fourth condition was एक और कंडीशन था, ओके, करेक्ट, इट वाज गैस फेज। ना अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज योर peroxide. ओके, नाउ वी कैन ऐड वन मोर कंडीशन हियर, दैट इज peroxide. ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको peroxide दिया हुआ है, लेकिन peroxide के जगह आपको और क्या क्या ऑल्टरनेटिव दे सकता है। इट कैन गिव यू एच म्यू, इट कैन गिव यू सनलाइट, ओके, और इट कैन गिव यू हाई टेम्परेचर। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर गिवन वी हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छा यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन फॉलो होने वाला है। इज दैट क्लियर? Okay, but anti-Markovnikov addition is only followed by your HBr. HCl HF HI जो है वो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही फॉलो करेंगे। HCl HF HI डू नॉट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, उसमें हम आगे आएंगे, बट अभी के लिए आपको यही समझना है कि ये सब जो है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो नहीं करते। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिया। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, ध्यान दो। सो अगर सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, ओके, मैं इसके सारे तरह के रिएक्शन लिखता हूँ। ओके, दैट इज आई राइट HCl, ओके, आई राइट HBr, ओके, आई एम राइटिंग HCl peroxide, okay, and I am writing HBr peroxide. Okay, now ध्यान दो, ध्यान दो। फर्स्ट केस में अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो व्हाट मैकेनिज्म शुड आई फॉलो? शुड आई फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और शुड आई फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? करेक्ट, इन द फर्स्ट केस आई शुड फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, सिंपल एज दैट। सो इन द फर्स्ट केस मेरा क्लोरीन जो है वो मिडिल में ऐड होगा या एंड पे ऐड होगा? करेक्ट, फर्स्ट वाले केस में मेरा प्रोडक्ट जो है वो ये फॉर्म होगा, यस और नो, राइट। नाउ सेकंड केस HBr, क्या यहाँ पे आपको पेरोक्साइड दिया हुआ है? हैव आई रिटन पेरोक्साइड हियर? यहाँ पर तो पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि व्हाट मैकेनिज्म शुड आई फॉलो? आई शुड बी फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट। सो हियर व्हाट विल आई गेट? हियर आई विल गेट अगेन ब्रोमीन बीइंग एडेड टू द मिडिल पोजीशन। इज दैट क्लियर? इन दोनों में ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही फॉलो करेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस वन हियर। यहाँ पे मैंने आपको HCl दिया है, पेरोक्साइड दिया है। हालांकि मैंने पेरोक्साइड दिया है, क्या पेरोक्साइड HCl पे काम करता है? विल HCl शो पेरोक्साइड इफेक्ट? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है HCl डू नॉट फॉलो एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन, यानी कि मेरा HCl कौन सा फॉलो करेगा? HCl विल फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ओनली। ओके, सो अब बताओ मेरा अगेन यहाँ पे क्लोरीन कौन से पोजीशन पे ऐड होगा? करेक्ट, अगेन यहाँ पे मेरा क्लोरीन जो है वो मिडिल पोजीशन पे ही ऐड होगा, राइट। नाउ आई हैव HBr एंड हियर आई हैव अ पेरोक्साइड, यानी कि यहाँ पे अब जो है मेरा एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन फॉलो होगा। दैट इज हियर माय ब्रोमीन विल गेट एडेड एट व्हिच पोजीशन? Correct, here my bromine will get added at the
end position. Is that clear to everyone? Okay, I hope इससे आपका confusion पूरा का पूरा दूर हो जाएगा. Complete कर लो. करेक्ट, यहां से लेके यहां तक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, सिर्फ यही वाला है जो कि आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. इज दैट क्लियर? Alright, so we have to discuss the mechanism for this, but I don't see कि काफी ज्यादा टाइम है, तो बस आप हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म. राइट, हम नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे. राइट, सो बस आप हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म. We will continue from the mechanism of anti-Markov addition in the next class. Alright, that's it for today.